Dear friends, this is another important text amendment for CA Inter November 22 exams. This amendment is very small, but possibility of evaluating the same in November 22 examination cannot be ruled out. ये amendment क्या है मैं आपको समझाता हूँ. छोटी सी amendment है but important है. If there is a transfer of residential unit, अभी हम लोगों ने सबने ये पढ़ रखा है कि अगर एक इमोल प्रॉपर्टी इज बिंग ट्रांसफर वेयर SDV स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू is more than 110% of the sale price, then there is a tax implication for the transferor as well as for the transferee. ये 110 अमाउंट जो है ये 110% का प्रोविजन है. ये हमें ये इस अमेंडमेंट में चेंज किया गया है. किस सिचुएशन में चेंज करा गया है, किस सर्कमस्टांसेस में चेंज करा गया वो एक्सप्लेन करता हूँ. तो अभी मैं आपको पहले एग्जिस्टिंग प्रोविजन बताता हूँ. एग्जिस्टिंग प्रोविजन क्या है कि अगर इमोल प्रॉपर्टी में आपका क्या कवर हो गया, आपका इमोल प्रॉपर्टी में लैंड भी कवर हो गया और बिल्डिंग कवर हो गई और लैंड और बिल्डिंग दोनों कवर हो गई. तो अगर इफ देर इज अ ट्रांसफर ऑफ इमोल प्रॉपर्टी when the SDV stands for stamp duty value is more than 110% of the sale price, then there is a tax implication for the transferor as well as for the transferee. For the transferor, the SDV will be deemed as the sale price. और यहाँ पे जो अमेंडमेंट आई है, ये अमेंडमेंट आई है only when the transferor is a builder. In the sense, this amendment is applicable only where the relevant immobile property is a stock in trade for the ट्रांसफर. तो यहाँ पे मैंने भी ये आपको समझाने की बात बता रहा हूँ कि अगर ये अमेंडमेंट से पहले अगर एक बिल्डर एक इमोल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता था और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ द सेल प्राइस, देन इन दैट केस SDV is deemed as the sale price in the hands of the builder. यहाँ पे बार बार कह रहा हूँ ये अमेंडमेंट जो है इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड फॉर द ट्रांसफरर. तो वही मैं एग्जिस्टिंग प्रोविजन आपको बता रहा हूँ और उसी के बाद मैं आपको बताऊंगा कि अमेंडमेंट क्या है. ट्रांसफरी के लिए टैक्स इम्प्लीकेशन क्या आती है. इफ इट्स सेम इज अ स्टॉक इन ट्रेड फॉर ट्रांसफरी, then there is a no taxability in the hands of the transferee. But if the asset is a capital asset for the transferee, then excess of SDV over sale price will be taxable if SDV is more than sale price by 50,000 and transferor is not related. मीन्स ये जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ. मान लीजिए हमारी जो सेल प्राइस है, सेल प्राइस हमारी आ रही है यहाँ पे अभी 10 लाख रुपीज. से SDV is coming to 12 lakh rupees. In this scenario, SDV is more than sale price, but SDV is more than 110% of the sale price. If we compute 110% of sale price, it comes to 11 lakh rupees. Here the SDV is more than the sale price. In this scenario, the property has been sold for 10 lakh rupees, but in this scenario the SDV will be deemed as the sale price in the hands of the transferor. And for transferee, since the difference is more than this difference between sale price and SDV is more than 50,000 rupees, the entire difference of 2 lakhs will be taxable in the hands of the transferee. This was the provision before the amendment. अब मैं आपको बताता हूँ अमेंडमेंट क्या है. ये अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है प्रीवियस ईयर 21-22 previous year. It means if somebody is giving examination in May 23, means for them assessment year is 23-24, previous year is 22-23, this amendment is not applicable. This is only a transitory amendment. It's applicable only for a one previous year which is relevant for the CA November 22 examination. May 22 एग्जामिनेशन पे इस प्रोविजन पे कोई इवेल्युएशन नहीं हुआ था, इसलिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दिस अमेंडमेंट मे बी इवेल्युएटेड इन नवंबर 22 एग्जामिनेशन. नाउ मैं आपको अमेंडमेंट बताता हूँ ये अमेंडमेंट क्या है. ये अमेंडमेंट क्या कहती है, ये प्रोविजन अमेंडेड प्रोविजन कब एप्लीकेबल होगा, इफ प्रॉपर्टी इज अ रेजिडेंशियल यूनिट. ये रेजिडेंशियल यूनिट
सेक्शन 43 CA में एग्जॉस्टिवली डिफाइन करा है। मैं आपको इसकी डेफिनेशन लेके चलता हूँ। रेजिडेंशियल यूनिट मीन्स independent housing unit with separate facilities for living, cooking, sanitary requirement, distinctly separated from other residential unit. If we go by simple meaning, it's a separate house in a separate house or a separate flat in a building. तो ये सिंपल है, इसको टेक्निकलिटी इसमें नहीं है। तो ये अमेंडमेंट कब इन्वॉल्व है? इफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इज अ रेजिडेंशियल यूनिट एंड द ट्रांसफरर इज योर builder, means it should be stock in trade for the transferer। वो जब भी पॉसिबल है जब वो बिल्डर है। यहाँ पे अभी यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ सकता है सर कि जरूरी नहीं है बिल्डर हो, देयर कुड बी अ पर्सन हु इज ट्रेडिंग इन अ इमोल प्रॉपर्टी, बट ये अमेंडमेंट उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये मैं आपको भी बताता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अमेंडमेंट किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली इफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इज अ रेजिडेंशियल यूनिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, this amendment will applicable only if immovable property is being transferred from within 1/4/21 to 36/21। These both dates are inclusive, means अगर residential units, both dates are inclusive। अगर रेजिडेंशियल यूनिट का ट्रांसफर इस पीरियड में हुआ है तभी ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल है, अदरवाइज अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है। 1/4/21 से 30 जून 21 के बीच में अगर रेजिडेंशियल यूनिट आपका ट्रांसफर हुआ है। एंड थर्ड पॉइंट, रेजिडेंशियल यूनिट इज ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ अ फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट, दैट इज इट इज सोल्ड बाय बिल्डर एज अ फर्स्ट हैंड सेल। मींस ये चीज मैं आपको जो बोल रहा था, रेजिडेंशियल यूनिट है, ट्रांसफर इस पीरियड में है, but if it is not being transferred by builder, it is being transferred by trader in immovable property, this amendment will not be applicable। This amendment is applicable only when residential units is transferred by way of first time allotment। In simple terms, it is sold by builder as a first time sale। And the fourth relevant point is sale consideration is up to 2 CR, means if sale consideration exceed 2 CR, this amendment will not be applicable। तो अब हमने अभी तक ये पढ़ा कि ये जो अमेंडमेंट आई है ये अमेंडमेंट किस कंडीशन पे एप्लीकेबल हो रही है। देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट, द ट्रांसफर टुक प्लेस बिटवीन 1/4/21 to 36/21। ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट बाय द बिल्डर, सेल कंसिडरेशन इज अप टू 2 CR। इफ ऑल दीज पॉइंट्स आर applicable, then what is the amendment? The above taxability, जो ये taxability मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाई है, ये वाली taxability, जिसमें एक चीज क्या आती है कि आपके पास taxability अराइज कब हो रही है? जब SDV is more than 110% of sale price। इसको चेंज करके लॉ ने कर दिया है 120%। मीन्स अगर आपका जो डिफरेंस है सेल प्राइस और SDV का, and SDV is not more than 120% of the sale price and all these conditions are satisfied, then nothing will be taxable in the hands of the transferor as well as the transferee। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमको ध्यान क्या रखना है कि अगर ये सारे पॉइंट्स एप्लीकेबल है, अभी नीचे मैंने एग्जांपल बिल करे, उससे आपको इन अमेंडमेंट्स पे और क्लैरिटी आएगी। अगर ये सारे पॉइंट्स एप्लीकेबल है, then the taxability will arise, additional taxability will arise only when the SDV is more than 120% of sale price। In other words, 110% has been replaced by 120%। यहाँ पे मैं एक important provision बता दूं, the provision regarding date of SDV is remain unaltered। means हम SDV कौन सी डेट के लेंगे? जिस दिन एग्रीमेंट टू सेल हुआ है या जिस दिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है। ये जो पहले प्रोविजन था ये प्रोविजन अभी अमेंडमेंट में भी मेंटेन करा हुआ है। इट मींस इफ ट्रांसफर हैज रिसीव्ड पार्ट ऑफ द मनी ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल बाय प्रिस्क्राइब बैंकिंग चैनल जो हमारे स्पेसिफाइड है, then SDV on the date of agreement to sale will be considered। else
SDV on the date of transfer will be considered. इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, अमेंडमेंट सिर्फ 110% को रिप्लेस करके 120% कर दी गई है, वो भी कब, जब मेरे ये चारों पॉइंट्स सेटिस्फाइड हो रहे। अब मैं आपको इस अमेंडमेंट को इवेल्यूएट करने के स्टेप्स बताता हूं और मैंने एग्जांपल्स बिल्ड करे, उससे आपको प्रोविजन क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू चेक वेदर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज रेजिडेंशियल यूनिट। चेकलिस्ट का पहला पॉइंट यस। Whether the transfer of residential unit is by way of first time allotment by the builder, second point tick हो गया। Whether transfer took place between 1/4/21, third point, and sale consideration is up to 2 CR. If all these 4 points are satisfied, then the amendment of 120% of sale price will apply instead of 110%. This amendment है। अब मैं आपको ये सारे पॉइंट जो हमने डिस्कस करे एग्जांपल से बिल्ड करता हूँ, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। मिस्टर ए बिल्डर सोल्ड अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड रेजिडेंशियल यूनिट ऑन 1/4/21 for 70 lakh rupees. Stamp duty value is 18 lakh. फॉर कंप्यूटिंग PGBP द सेल कंसिडरेशन क्या होगी। अब हम चारों पॉइंट चेक करते हैं। पहला, क्या ये प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल यूनिट है? यस, आप बोलोगे क्वेश्चन में लिख रखा है रेजिडेंशियल यूनिट है। क्या ये फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट है? आप बोलोगे क्यों, न्यूली कंस्ट्रक्टेड रेजिडेंशियल यूनिट है, ये भी है। ट्रांसफर किस डेट को हो रहा है? ट्रांसफर इज ऑन 1/4/21, तो ये इस पीरियड में भी आपका प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है। फोर्थ पॉइंट, सेल कंसिडरेशन इज अप टू 2 CR। सेल कंसिडरेशन कितनी है मेरी? 7 lakhs। चारों पॉइंट एप्लीकेबल हो गए, मींस अमेंडमेंट इज एप्लीकेबल। अब अमेंडमेंट क्या है? प्रॉपर्टी हमने कितने की सेल करी है? 70 लाख रुपीस की। वी कंप्यूट 120% ऑफ 70 lakhs which comes to 84 lakhs. SDV is 80 lakhs. Since SDV is less than 120% of sale price, in this case this sale price will be taken as the sale price in the hands of the builder. This is the answer. And similarly nothing will be taxable in the hands of the transferee. ये हम इस तरह से एग्जांपल बिल्ड करते हैं, इससे आपको पूरा प्रोविजन क्लियर होगा। नेक्स्ट वी टेक एन एग्जांपल। Mr. A builder enter into an agreement for sale of newly constructed residential unit on 1/4/21 for 80 lakh rupees. On this date, SDV was 95 lakh rupees. Builder received 2 lakh from the buyer on this date through account pay check. This account pay check is one of the prescribed banking channel जो हमें अलाउड है। इस केस में अब मेरे लिए जो SDV रेलेवेंट है, वो SDV कौन सी रेलेवेंट है? ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, which is 95 lakh rupees. A sale deed was executed on 30th June 21 when SDV was 97 lakh. अब now again फिर चारों पॉइंट हम चेक करते हैं। रेजिडेंशियल यूनिट है, कोई डाउट नहीं है, यस, ये पॉइंट टिक हो गया। दूसरा, हमारा फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट है, बिकॉज न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी बिल्डर ने बेची है, फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट वाला पॉइंट टिक हो गया। प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कब हुआ है? प्रॉपर्टी का ट्रांसफर 30/6/21 को हुआ है, ये पॉइंट भी टिक हो गया। प्रॉपर्टी की सेल प्राइस कितनी है? सेल प्राइस है हमारी 80 लाख रुपीस, लेस देन 2 CR, ये पॉइंट मीन्स चारों पॉइंट आपके टिक हो गए, अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो गई। अब हमारी सेल प्राइस कितनी है? यहाँ पे हमारी सेल प्राइस है 80 lakhs। रेलेवेंट SDV कौन सी है? 95 lakhs, क्योंकि on the date of agreement to sell the builder has received 2 lakh rupees by way of account pay checks। तुम्हारे लिए डेट ऑफ एग्रीमेंट की जो SDV है which is this is applicable। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? 120% of the sale price which is come to 96 lakh rupees. Now SDV is less than 120% of the sale price. In this case the actual sale price will be taken as the sale price in the hands of the builder
and nothing will be taxable in the hands of the buyer because SDV is less than 120% of the सेल प्राइस। दोबारा बोलता हूँ, 80 लाख रुपए की सेल प्राइस है, अगर 120% निकालते हैं ये हमारा 96 लाख रुपीस आ रहा है। हमारी एसडीवी कितनी है? 95 लाख। ये 120% के अंदर फॉल कर रही है। इन दैट सिनेरियो actual sale price will be taken as the sale price in the hands of the buyer and nothing will be taxable in the hands of the, my mistake, 80 lakhs will be taken as the sale price in the hands of the seller and nothing will be taxable in the hands of the buyer. थर्ड एग्जांपल लेता हूं, उससे और क्लैरिटी बिल्ड होगी आपको। Builder enter into an agreement for sale for newly constructed residential unit on 1/4/21 for 80 lakhs. On this date, SDV was 95 lakhs. He received 2 lakhs through account pay check. ठीक है, ये भी हमारा प्रिस्क्राइब बैंकिंग चैनल है। सेल डीड was executed on 31/7/91 when SDV was। इस केस में पहली कंडीशन चेक करने के लिए हमारे क्या है? रेजिडेंशियल यूनिट है, यस, दिस इज क्वेश्चन प्रोवाइड है। फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट, न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट हो गई हमारी, ये भी पॉइंट है। थर्ड पॉइंट जो हो रहा है वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है फॉर दिस अमेंडमेंट। ये प्रोविजन हमने डिस्कस करा, कब एप्लीकेबल है? when the property is being sold between this period, this property is being transferred, even agreement to sell was done between this period जो हमारा relevant period है, but the property has been transferred after this period, amendment will not be applicable। इस केस में 110% वाला प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। समझते हैं हम लोग। सेल प्राइस कितनी है हमारी? 80 लाख रुपीस। 110% ऑफ सेल प्राइस कितना हो गया? 88 लाख। रेलेवेंट एसडीवी कौन सी है? 95 लाख, क्योंकि उस दिन हमारे को पार्ट पेमेंट रिसीव हो गया। इन दिस केस द एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ सेल प्राइस। तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस, फॉर द पर्पस ऑफ computing PGBP in the hands of the builder seller, 95 lakh will be taken as the sale price. Similarly, in the hands of the buyer, 95 lakhs minus 80 lakhs, that is 15 lakhs will be taxable, provided the same is a capital assets in the hands of the buyer and the builder and the buyer is not related। वो हमारी बेसिक प्रीमाइज है, वो मान के चल रहे हैं। अभी वो कंडीशंस हमारे लिए एप्लीकेबल, मतलब रिलेटिव भी नहीं है और उसके हाथ में ये कैपिटल एसेट है। इन दिस केस दिस 15 लाख विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द बायर एज वेल एज फॉर द बिल्डर द सेल प्राइस विल बी टेकन एज 95 लाख। ये अमेंडमेंट का बेसिकली एक ब्यूटी है कि हमको ये चारों पॉइंट चेक करने। फोर्थ पॉइंट वो हमारा चेक हो रहा था, सेल प्राइस इज 80 लाख लेस देन 2 CR। तो हमारे 4 पॉइंट में से थर्ड पॉइंट हमारा सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था, अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है। इस केस में 110% वाला प्रोविजन जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन था वही एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। मिस्टर ए ट्रेडर इन अ रेजिडेंशियल हाउस रीसेल दी रेजिडेंशियल हाउस। पहला पॉइंट ही हमारा ये आ गया, रीसेल। इसका मतलब इट्स नॉट अ फर्स्ट टाइम अमेंड, फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट मींस अमेंडमेंट इज नॉट एप्लीकेबल। अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है तो 110% वाला प्रोविजन मेरे लिए एप्लीकेबल होगा। लेट्स से व्हाट इज दैट थिंग। सेल प्राइस हमारी कितनी हो गई? हमारी यहाँ पे सेल प्राइस हो गई 80 लाख रुपीस। एसडीवी इस दिन कितनी थी? एग्रीमेंट टू सेल वाले दिन एग्रीमेंट टू सेल वाले दिन हमारी एसडीवी कितनी थी? 90 लाख रुपीस। ही एंटर इनटू एग्रीमेंट ऑन दिस डेट।
रिकॉल का एग्रीमेंट टू सेल वाला नहीं, ये प्रॉपर्टी मेरी सेल हुई है, इट्स अ ट्रांसफर डेट। ट्रांसफर डेट पे मेरी एसडीवी 90 लाख थी। एग्रीमेंट टू सेल जो मैंने करा है, एग्रीमेंट टू सेल हमने कब करा है? 1 मार्च 21, जब उस दिन एसडीवी कितनी थी? 89 लाख। और उस दिन पेमेंट कैसे करी है? सिंपल क्रॉस चेक। इट्स नॉट एन अकाउंट पे चेक, इट इज नॉट अ प्रिस्क्राइब बैंकिंग चैनल। मैं अभी प्रिस्क्राइब बैंकिंग चैनल पे नहीं जा रहा हूँ, वो आपको और नोट्स में मिल जाएगा। नॉट अ प्रिस्क्राइब banking channel. It means the SDV on the date of the agreement to sell will not be applicable. SDV on the date of transfer will be applicable. हम ये लेते हैं। Now applicable SDV कौन सी हो गई हमारे लिए? 90 lakhs। अब 110-20% वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। हमने वर्कआउट करा 110% ऑफ द सेल प्राइस, इट कम्स टू 88 lakhs. Now SDV is more than 110% of the sale price. In this case, for the seller, bill trader, the relevant sale price will be taken as the SDV. This is 90 lakh. Similarly, for the buyer, the difference between the difference between SDV and sale price will be taxable. It means buyer के हाथ में भी 10 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। मिस्टर ए, अ बिल्डर एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर सेल फॉर न्यूली कंस्ट्रक्टेड रेजिडेंशियल यूनिट ऑन 1/3/21 for 70 lakhs. On this date, SDV was 75 lakhs. He received 2 lakh from the buyer on 1/1/21 through cross check. Again, this cross check is not a prescribed banking channel. ठीक है। The sale deed was executed on 36/21. Now let's see whether for making applicable amendment क्या चारों पॉइंट सेटिस्फाइड हो रहे हैं, हम चेक करते हैं। रेजिडेंशियल यूनिट इन्वॉल्व है, क्वेश्चन कह रहा है रेजिडेंशियल यूनिट है, यस इट्स अ रेजिडेंशियल यूनिट। फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट हो रही है, यस सर फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट भी है। हमें कैसे पता लगा? न्यूली कंस्ट्रक्टेड रेजिडेंशियल यूनिट, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी इस पीरियड में ट्रांसफर हुई है? सर यस बिल्कुल हुई है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो 30/6/21 को हुई है। सेल प्राइस 70 लाख रुपीस, यस भाई साहब ये भी 2 लाख 2 करोड़ से कम है। इसका मतलब अमेंडमेंट के लिए चारों पॉइंट्स एप्लीकेबल हो रहे हैं। इसका मतलब अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगी। नाउ सी हाउ टू मेक एप्लीकेबल। सेल प्राइस मेरे लिए कितनी हो गई? 70 lakhs। रेलेवेंट एसडीवी कौन सी होगी? यहाँ पे रेलेवेंट एसडीवी हम कौन सी लेंगे? 83 lakhs, जिस दिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करिए। क्योंकि हमें जो प्रिस्क्राइब जो पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन आई है, इट्स नॉट द प्रिस्क्राइब बैंकिंग चैनल क्रॉस चेक। तो एसडीवी कितनी हो गई? सॉरी 83 lakhs। ना अमेंडमेंट एप्लीकेबल है, वी वर्क आउट 120% ऑफ सेल प्राइस, इट्स कम्स टू 84 lakhs। मीन्स अब हमारे को जो एसडीवी है इट इज लेस देन 120% ऑफ सेल प्राइस। तो इस केस में मेरे पास जो बायर के हैंड्स में सेल प्राइस लेंगे, एक्चुअल सेल प्राइस लेंगे 70 lakhs एंड नथिंग विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द नथिंग विल बी टैक्सेबल फॉर बायर। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें सिंपली कि हम ये 4 पॉइंट्स पे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर ये चारों पॉइंट सेटिस्फाई हो रही है, अमेंडमेंट एप्लीकेबल है, फिर स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है रेलेवेंट एसडीवी कौन सी पिक करनी है, एग्रीमेंट टू सेल वाली या ट्रांसफर डेट वाली। और स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी उनको स्टूडेंट्स को ऑलरेडी इस चीज का तो आइडिया हो गई होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अमेंडमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। Mr. A builder enter into an agreement to sell for newly constructed residential unit on this date for 2.1 CR, 2 करोड़ 10 लाख। On this date, stamp duty value was 2 लाख 2 करोड़ 15 लाख। He received 2 lakh through cross check, not a prescribed banking channel.
Sale deed was executed on 30th June 21 when SDV was 250. अब हमको निकालना है फॉर कंप्यूटिंग पीजीबीपी सेल कंसिडरेशन कितनी होगी। लेट्स सी, चारों पॉइंट चेक करते हैं। रेजिडेंशियल यूनिट, यस। फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट, यस, बिकॉज ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग। थर्ड, सेल इज बिटवीन दिस पीरियड, यस, ये भी एप्लीकेबल है क्योंकि सेल मेरी कब हुई है, 30/6/21 को। सेल कंसिडरेशन अप टू 2 CR, अरे यार ये तो एप्लीकेबल ही नहीं हो रही है, इसका मतलब अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है। तो इस केस में अब हम पी देखेंगे क्या हमारे पास पुराना प्रोविजन जो लगेगा किस तरीके से लगेगा। सेल प्राइस 210 lakhs, अब यहाँ पे हमें तो 110% लगाना पड़ेगा। 110% ऑफ सेल प्राइस कितनी होगी भाई साहब, 2 लाख। रुकिए मैं चेक कर लेता हूँ, 221 231 lakhs। एसडीवी कौन सी लूंगा, एग्रीमेंट टू सेल वाली, ट्रांसफर डेट वाली, ट्रांसफर डेट वाली, क्योंकि मेरे पास जो 2 लाख रुपए आए हैं ये क्रॉस चेक से आए, इट्स नॉट अ प्रिस्क्राइब बैंकिंग चैनल। तो रेलेवेंट एसडीवी कौन सी हो गई, 250 लाख। अब इस केस में सिंस एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ सेल प्राइस, तो बायर के हाथ, सॉरी बिल्डर के हाथ में जो सेल प्राइस ली जाएगी वो एसडीवी ली जाएगी, और बायर के हाथ में जो टैक्सेबिलिटी आएगी वो कितने अमाउंट की आएगी, 250 लाख एसडीवी माइनस सेल प्राइस 210 lakhs, 40 lakhs will be taxable in the hands of the buyer. तो ये अमेंडमेंट, to me this amendment will definitely will be evaluated in November 22 CA एग्जामिनेशन। छोटी सी अमेंडमेंट है, बट अगर हम मेथोलॉजिकली चलेंगे, मीन्स जो 4 स्टेप मैंने आपको बताए हैं, इस 4 स्टेप को फॉलो करना, देन यू विल कम टू नो भैया 110% लगेगा सेल प्राइस का, 120% लगेगा। उसके हिसाब से आप 110 120 निकालना, उसको कंपेयर करना रेलेवेंट एसडीवी से, देन यू विल अराइव एट द आंसर कि बायर के हाथ में क्या टैक्सेबिलिटी आएगी, सेलर के हाथ में क्या टैक्सेबिलिटी आएगी। छोटी सी अमेंडमेंट थी, आई होप सबको क्लियर हुई होगी। जो भी डाउट्स आते हैं यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर विच इज रनिंग ऑन दिस स्क्रीन।